A very good morning and Jai Hind students. Today we will study economics 12th class, and in previous lecture we will discuss concept of good. So initially we will try to quick revision, then after we will start new topic. Concept of goods. Your concept of goods divided into two parts: intermediate goods are those goods which are used by the producer, and final good. Normally beta concept of goods is divided into two parts: intermediate goods and final goods. Intermediate goods are those goods which are used by the producer, and there are two features of intermediate goods. First features is intermediate goods used in production process. For example, as a raw form, sugarcane, cotton, raw material, etc. And second features of intermediate goods, that intermediate goods resell in a same year. For example, one production unit purchased to other production unit. I have already discussed these things. Next is final goods. Final goods is also divided into two parts also. First is capital goods and consumption goods. Normally students, intermediate goods are used by the producer and final goods used by the both. Capital good used by the producer, but consumer goods used by the consumer. Consumption goods used by the consumer. How can this possible? Normally students, if in a production process producer use machinery, that is capital goods, and capital goods not used in production process but not identity loss. For example, मशीनरी है, मशीनरी फाइनल कैपिटल गुड्स होगी. फाइनल गुड्स क्यों? क्योंकि एक ही बार उसने परचेज की, देन आफ्टर मैनी ईयर्स तक वो चलती चली जाएंगे. बट कंजप्शन गुड्स में क्या आएगी? कंज्यूमर गुड्स भी ऐसी हो सकती हैं. कंज्यूमर गुड्स आर यूज बाय द कंजप्शन गुड्स यूज बाय द कंज्यूमर. Both are final goods. Capital goods and consumers goods, both are the final good. Getting? These are the concept of goods, and these four concept in economics: concept of goods, intermediate goods, final goods, capital goods, and consumption goods. So these are category of the goods. Now students, in previous 2 years board examination, one question was state the and use, inverted commas में है, and use classification of good. ये क्वेश्चन आया था. State the end use classification of goods. So state the end use of classification. How can classify these goods? So its answer will be, there are in three parts. What will be? What is the category? So your answer will be capital goods. Second is consumption goods. And last one is intermediate good. This question was for 3 marks. State the end use classification of goods. So there are 3 types of good. Capital goods, आप लोग इसको explain कर सकते हो because it was 3 marks. Capital goods are those goods which are used by the
producer. For example, machine, tools, equipment, etc. Consumption goods which are used by the consumer. For example, bread, pen, fan, car, जो भी कंज्यूमर यूज करता है. एंड लास्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स विच आर यूज बाय द प्रोड्यूसर एज ए रो फॉर्म, रो मटेरियल की फॉर्म में जो यूज करता है. तो ये क्वेश्चन था आपका 3 मार्क्स में आया था. इस क्वेश्चन का आंसर देने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज्यादा. 2 ईयर बिफोर और मे बी 3 ईयर बिफोर क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में. स्टेट द एंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. तो एंड यूज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स: कैपिटल गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. गेटिंग कैपिटल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स ही मिलके क्या बन जाती हैं? फाइनल गुड्स. तो गुड्स आर डिवाइडेड इनटू कंसेप्ट ऑफ गुड्स. गुड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट: इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड्स. फाइनल गुड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट: कैपिटल गुड एंड कंजप्शन गुड्स. तो एंड यूज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा टोटल आपका? 3 पार्ट्स: कैपिटल गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. इसी से रिगार्डेड बेटा एक क्वेश्चन और था आप लोगों का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, 3 मार्क्स में आया था. क्वेश्चन था ऑल मशीन इनवर्टी कॉमास में, ऑल मशीन्स आर ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स. और इसमें करना था आपको डिफेंड एंड रिफ्यूट. ऑल मशीन आर कैपिटल गुड्स, ऑल मशीन आर कैपिटल गुड्स, डिफेंड एंड रिफ्यूट. तो यू क्या आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन का? नॉर्मली जब भी डिफेंड एंड रिफ्यूट आता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या प्रॉब्लम करते हैं? आंसर सोचते हैं कि इसको ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स में तो इसका आंसर देना ही नहीं है हमें ये स्टेटमेंट जो गिवन है ऑल मशीन आर कैपिटल गुड्स, इस स्टेटमेंट को या तो डिफेंड करना है या इसको रिफ्यूट करना है, या तो इसके फेवर में जाना है या इसके अगेंस्ट में जाना है. अब ध्यान से देखिए स्टेटमेंट क्या है. ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स. क्या जितनी भी मशीनें हैं वो कैपिटल गुड्स हैं? क्या मशीनों को केवल प्रोड्यूसर ही यूज करता है? कैपिटल गुड्स का मतलब तो यही हुआ. कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज बाय द प्रोड्यूसर. तो इसने क्या कहा कि ऑल मशीन, सारी मशीनें कैपिटल गुड्स हैं. तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग? पहले इसका आंसर होगा बेटा ट्रू फॉल्स में इसका आंसर नहीं देना आप लोगों को. तो इस पे आप क्या करोगे? आई रिफ्यूट. रिफ्यूट यानी आप इसके फेवर में नहीं हो. आई रिफ्यूट द अबो स्टेटमेंट. हम इस स्टेटमेंट से रिफ्यूट करते हैं, हम इससे डिसएग्री हैं कि ऑल मशीन आर कैपिटल गुड्स, सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं है. रीजन क्या है इसका? आप लोग रीजन दोगे. क्या रीजन हो सकता है? देखो रीजन में आप लोग थ्योरी लिखोगे, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बता रहा हूं. घर में यूज होती है वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन. अब वॉशिंग मशीन का यूज देखिए. वॉशिंग मशीन आप लोगों के घरों में है, बोलो है. वॉशिंग मशीन इट इज यूज बाय